Hello students, welcome to Asta Classes. I am Professor Chandan Devidasani, Director of Asta Classes. So let's talk about the journey of Asta Classes. We have already started our classes 11 years back. Now we are having with the best efforts, with the best results, we are known in the city of Ulhasnagar. Now let's talk about the courses. We have a commerce classes in our city with the name of Asta Classes. From 11 to MCom, as well as we have a management courses, that is BMS, BBI, BAF, BFM and MMS also. Today the scenario is totally worse, as you already know. Due to the lockdown, we are unable to reach to our students. So we have chosen a online lectures. Students, जैसे कि आपको पता है, आज हम लोग ऑफलाइन लेक्चर्स नहीं स्टार्ट कर सकते, मगर ऑनलाइन लेक्चर्स तो स्टार्ट हो चुके हैं हमारे क्लासेस पे, एज यू ऑलरेडी नो. हम लोगों ने सभी स्टूडेंट्स को बोल के बता दिया है कि वेबएक्स एप्लीकेशन मीटिंग एक सॉफ्टवेयर है जिसको आप लोगों को डाउनलोड करना है और उसी से ही हम लोग अपने ऑनलाइन लेक्चर्स ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं. जस्ट लाइक ओसी हम लोगों ने पहले से ही स्टार्ट कर लिया, एसपी ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने, मैथमेटिक्स ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया और कल के दिन में हम लोगों ने बीके के लेक्चर्स भी स्टार्ट कर दिए. इट मींस आज वो जो है सेकंड लेक्चर हम लोगों ने बीके का लेक्चर रखा है. तो उम्मीद करता हूँ कल आप लोगों को लेक्चर बहुत अच्छा लगा था और आज भी उससे ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि आज हमारे पास बोर्ड का फैसिलिटी भी अवेलेबल है. कल तक हम लोगों ने पीपीटी के जरिए आप लोगों को बीके लेक्चर्स सिखाए थे, मगर आज आप लोगों को प्रैक्टिकल किस तरह से बीके का लेक्चर होने वाला है वो आज आपको देखने वाला है. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेकंड लेक्चर विद द आसवानी सर. Hello everyone, yesterday we have started with our 12th Commerce PK syllabus first topic, Bills of Exchange. You have attended the lecture on WebEx meeting yesterday. It's our application. We have already informed you that you have attended the lecture over there. Today we are continuing with that topic, Bills of Exchange. Yesterday we have discussed the Bills of Exchange and we have started with the transaction. What do you mean by transaction? Yesterday many of students have given the answers. Transaction means what? Transaction means this: buying and selling of goods and services, exchange of goods and services. It is usually done between buyer and seller. And we have already learned in 11th commerce, आप सबने सीखा है बेटा 11th commerce में भी there are different types of transactions. There are three different types of transaction broadly speaking. These three types are cash transaction, credit transaction and barter transaction. In cash transaction, what happens actually? Buyer purchases the goods and pays cash immediately to the seller. Here the transaction gets over. Second type of transaction is credit transaction. Credit transaction means where buyer purchases the goods but promises seller to pay amount on the future date. Majority in modern commerce, majority of the transactions are credit transactions. Third type of transaction is barter transaction. In ancient days, these transactions were happen, that is goods and services were exchanged for another goods and services. But in modern commerce, we definitely deal with only two types of transaction, that is cash transaction and credit transaction. But majority cases, every supplier wants to sell, every seller wants to sell his goods on cash, but buyer always try to purchase the goods on credit. And in modern commerce, credit transactions are usually happens. In that, buyer purchases the goods from the seller and promises seller to pay the amount of that particular goods on future date. These were called as credit transaction. These actually are called as credit transaction. 11th commerce में भी आपने cash transaction और credit transactions के बारे में पढ़ा. Credit transaction में seller चाहता है कि मुझे कुछ ना कुछ एक proof होना चाहिए कि मैंने goods sell किए हैं और buyer मुझे उसकी क्या करेगा, पेमेंट करेगा. Seller को assurance चाहिए. इस assurance को करने के लिए, इस assurance को पाने के लिए seller buyer के ऊपर एक इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ करता है, एक बिल ड्रॉ करता है.
और बायर को सिर्फ बोला जाता है कि आप इस बिल पे साइन करो। उस बिल पे सिर्फ मेन दो बातें लिखी रहती हैं, एक कितने अमाउंट के उसने क्रेडिट पे गुड्स परचेस किए एंड कितना क्रेडिट पीरियड उसको अलाउ किया गया है, जिस क्रेडिट पीरियड के ओवर होने के बाद उसको पेमेंट करनी है। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन में बायर और सेलर का एक रिलेशन बनता है। सेलर के लिए बायर एक डेटर बन जाता है। डेटर वो होता है जिससे पैसा लेना है, और बायर के लिए सेलर कौन बन जाता है? क्रेडिटर। यहाँ पर रिलेशन बनता है डेटर और क्रेडिटर का, कैश ट्रांजैक्शन में नहीं बनता, क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन में आपने गुड्स खरीदे, पैसा दे दिया, ट्रांजैक्शन ओवर हो जाती है। तो ज़्यादा करके फिक्स है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज जब भी हम बात करते हैं या बिल की हम बात करते हैं, यस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा तो सेलर चाहेगा कि मैं सामने वाले के ऊपर, जो बायर है परचेस कर रहा है गुड्स, उसके ऊपर मैं बिल बनाऊं। उस बिल को बोला जाता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। यस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड द डेफिनेशन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आपको याद होगा बेटा, सेक्शन 5 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 बिल ऑफ एक्सचेंज को डिफाइन करता है। बिल ऑफ एक्सचेंज एग्जैक्ट क्या है? आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आपको पीपीटी पे दिख रहा है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग containing an unconditional order signed by the maker directing to the certain person to pay certain sum of money only to or to the order of certain person or to the bearer of the instrument। तो इसका एग्जैक्ट हमने यस्टरडे मीनिंग डिस्कस किया था। टुडे इज अ रिवीजन लेक्चर ऑफ यस्टरडे। तो मैं आपको शॉर्ट में फिर से बता दूं कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज मीन्स एक इंस्ट्रूमेंट, एक पेपर है राइटिंग में जिसपे कुछ लिखा हुआ है। अनकंडीशनल ऑर्डर, सेलर कोई भी कंडीशन नहीं डालता, बायर कोई कंडीशन नहीं डालता, कंडीशनल कुछ नहीं रहती कि मेरे गुड्स अच्छे निकले तो आप पेमेंट देना, उस दिन बारिश पड़ रही हो तो पेमेंट देना, ऐसा कुछ नहीं होता। अनकंडीशनल ऑर्डर होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, साइंड बाय द मेकर। मतलब जब भी हम गुड्स परचेस करते हैं तो हमेशा बिल बनाने वाला कौन? सेलर होता है, बायर नहीं बनाता बिल। बिल कौन बनाता है? सेलर। तो साइंड बाय द मेकर, सेलर पहले उसके ऊपर साइन करता है। और क्या बायर को डायरेक्शन देता है, क्या इंस्ट्रक्शन देता है भाई, कि आपने मेरे से क्रेडिट पे गुड्स परचेस किए हैं, आप इस पीरियड के बाद मुझे पेमेंट कर दोगे। यहाँ पर ये भी लिखा है पे टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन और टू द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इसका मतलब होता है कि आप ड्यू डेट पे पेमेंट मुझे करना, या मैं जिसको बोलूं उससे करना, या जिसके भी हाथ में बिल अवेलेबल हो। बेयरर मतलब जिसके भी हाथ में बिल अवेलेबल हो उसको आप क्या कर देना? पेमेंट कर देना। तो यहाँ पर आपको दो पार्टीज दिख रही हैं, एक जो गुड्स सेल कर रहा है क्रेडिट पे और दूसरा जो गुड्स परचेस कर रहा है क्रेडिट पे। तो दो पार्टीज तो उनको दिख रही हैं, बट एक्चुअली स्पीकिंग यस्टरडे आई टोल्ड यू देयर आर actually three parties, can be three parties in bills of exchange. Next slide you see the three parties in bills of exchange, that is drawer, drawee and payee. Drawer, let's talk about drawer. Let's revise about drawer. Yesterday we have discussed drawer means a person. Drawer means a person who draws the bill. He is the seller who sold the goods to the buyer on credit and he sells the goods on credit and draws bill on buyer. Second part is drawee. Drawee is a person on whom the bill is drawn. He purchases the goods on credit. He is also known as buyer, purchaser and debtor for that seller. There is a third party also. I told you, pay. Pay कौन होता है? Pay can be third party. Pay can be third party or pay drawer himself also. What happens actually? Seller sold the goods on credit, buyer purchased the goods on credit. Seller, after selling the goods on credit, draws an instrument that is bills of exchange and needs to be accepted from the buyer. Buyer accepts the bill and gave the original copy to the seller. Now the original copy is with seller. ओरिजिनल कॉपी किसके पास है? सेलर के पास, जिसपे बायर का साइन किया हुआ है, एक्सेप्ट किया हुआ है कि हाँ मैंने गुड्स परचेस किए हैं और मैं उसकी क्या करूँगा? पेमेंट करूँगा। उस बिल को सेलर अपने पास संभाल के रखता है। सेलर मीन्स कौन? ड्रॉवर। अपने पास बिल संभाल के रखता है, इसने बिल बनाया है और साइन करके ड्रॉवी से अपने पास रख दिया। He will be waiting for due date to come and collect the amount of that bill. But ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारा सेलर है
उसको भी किसी और को क्या करने हैं, पैसे देने हैं। अगर किसी और को पैसे देने हैं और ड्यू डेट से पहले कोई आ जाता है उससे पैसे लेने, तो सेलर के पास ये राइट होता है, बिकॉज बिल ऑफ एक्सचेंज एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। इसके वजह से क्या होगा, सेलर चाहे तो वो बायर का साइन किया हुआ बिल उस पर्टिकुलर थर्ड पार्टी को भी ट्रांसफ़र कर सकता है। अभी ड्यू डेट पे सेलर ड्रॉवर पेमेंट लेने जा नहीं सकता। अभी पेमेंट लेने कौन जाएगा, थर्ड पार्टी। यस्टरडे आई हैव गिवन यू द एग्जांपल ऑफ लाल जो सेलर था, राहुल जो बायर था, और लाल ने राहुल के ऊपर एक बिल बनाया था और राहुल ने उस बिल को साइन करके लाल को दे दिया था। फिर यस्टरडे आई टोल्ड यू कि लाल ने ड्यू डेट से पहले वो बिल किसी और को क्या कर लिया था, ट्रांसफ़र कर दिया था। से फॉर एग्जांपल उसको चंदन को पेमेंट करनी थी तो उसने चंदन को पेमेंट कर दी। और चंदन को पेमेंट कैसे की, कैश में नहीं की, वो राहुल का साइन किया वो बिल ट्रांसफ़र कर दिया। अभी आप खुद सोचो, ड्यू डेट पे पैसा लेने लाल जाएगा कि चंदन? लाल नहीं जा सकता, चंदन को जाना पड़ेगा। चंदन जाएगा, लाल जाएगा भी तो भी उसको पेमेंट मिलने वाली नहीं है। पेमेंट किसको मिलेगी, चंदन को। अभी चंदन कौन बन जाएगा, पे। तो 3 पार्टीज हैं और चंदन को ड्यू डेट पे पेमेंट किस बेसिस पे मिलेगी, क्योंकि उसके पास लाल ने एंडोर्स किया है बिल, ट्रांसफ़र किया हुआ है, वो साइन किया हुआ बिल राहुल का किसके पास है, चंदन के पास है। तो अभी पेमेंट ड्यू डेट पे किसको मिलेगी, चंदन को। मतलब अभी थर्ड पार्टी आ गई, दैट इज पे। एक बात मैं आपको यहाँ पर और बता दूं बेटा, अगर लाल ने वो बिल ड्यू डेट से पहले किसी को भी ट्रांसफ़र नहीं किया तो ड्यू डेट पे आप खुद समझदार हो, पैसा लेने कौन जाएगा, लाल खुद ही जाएगा। तो लाल ड्रॉवर भी बन जाएगा और लाल पे भी पॉसिबल है। लाल ड्रॉवर भी है और लाल पे भी माना जाएगा, क्योंकि ड्यू डेट पे उसने बिल उसके पास ही है और वो पेमेंट लेने जा रहा है। तो ड्रॉवर, ड्रॉवी एंड पे कैन बी थर्ड पार्टी और पे कैन बी ड्रॉवर ऑल्सो। Understood that? Yesterday we have discussed up to here. There are 3 parties to the bills of exchange. Today we are proceeding with one small section also, that is different types of bill. Yesterday we have discussed up to parties and now we are discussing with types of bill. There are 2 types of bill. Very easy to understand. 2 types of bills are there. First is inland bill, second is foreign bill. Inland bill क्या होता है भाई? इनलैंड बिल में क्या होता है, अगर आपका ड्रॉवर दैट इज सेलर और आपका बायर दैट इज ड्रॉवी, अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो रही है तो ड्रॉवर ड्रॉवी, दोनों ड्रॉवर और ड्रॉवी एक ही कंट्री को बिलोंग करते हो, तो ऐसे बिल को हम क्या बोलते हैं, इनलैंड बिल। एग्जाम्पल, राम ऑफ मुंबई ड्रॉज अ बिल ऑन विजय ऑफ इंडिया का ही कोई सिटी होना चाहिए, विजय ऑफ पुणे, तो मुंबई पुणे कहाँ पर हो जाएगा, इंडिया में, तो ऐसे बिल को हम क्या बोलेंगे, इनलैंड बिल। फॉरेन बिल क्या होता है, यहाँ पर ड्रॉवर एक कंट्री को बिलोंग करता है, ड्रॉवी दूसरी कंट्री को बिलोंग करता है, तो ऐसे बिल को हम क्या बोलते हैं, फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज। ड्रॉवर इंडिया का, से फॉर एग्जाम्पल राम ऑफ मुंबई ड्रॉस बिल ऑन रचना ऑफ दुबई, तो आप देख रहे हो 2 कंट्रीज आ गए बेटा, एक इंडिया, मुंबई मीन्स इंडिया एंड दुबई, तो यहाँ पर इस ऐसे बिल को हम क्या बोलते हैं, फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज। तो आपको देखेंगे 2 टाइप, एक इनलैंड बिल और एक फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज। अंडरस्टूड दैट बेटा? तो बेटा अभी तक हमने अपने फर्स्ट टॉपिक बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ये सीखा कि जब भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है तो वहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट बनता है जिसका नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। फिर हमने उसका डेफिनेशन सीखा जो क्लियर कट बता रहा है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज सेलर बनाता है, बायर उसको एक्सेप्ट करता है और ड्यू डेट पे उसकी पेमेंट करने का उसमें इंस्ट्रक्शंस लिखा रहता है। फिर हमने देखा बेटा 3 पार्टीज टू द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, दैट इज ड्रॉवर, ड्रॉवी, पे। सिंपल वर्ड्स में अगर एक बार फिर से मैं बता दूं तो ड्रॉवर जिसने बिल बनाया, जिसने क्रेडिट पे गुड्स सेल किए, सेलर। बायर जिसने गुड्स परचेस किए, बिल एक्सेप्ट किया तो ड्रॉवी बन गया। पे मीन्स थर्ड पार्टी, जो हो सकता है ड्रॉवर भी हो सकता है अगर उसने बिल ट्रांसफ़र नहीं किया तो पे कोई और हो जाएगा। फिर हमने सीखा आज के लेक्चर में 2 टाइप्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, दैट इज इनलैंड बिल एंड फॉरेन बिल। ड्रॉवर ड्रॉवी एक ही कंट्री के, इनलैंड बिल। ड्रॉवर एक कंट्री का, ड्रॉवी दूसरी कंट्री का, तो उसको बोला जाता है फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज। अभी यहाँ तक एक छोटा सा थियोरेटिकल पार्ट बेटा आपका खत्म हुआ। अभी हम आपके बोर्ड के एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज का प्रोफॉर्मा ड्रॉ करना पड़ता है।
11th कॉमर्स में भी आपने कुछ परफॉर्मास बनाए थे, लाइक चेक का आपने परफॉर्मा बनाया होगा, रिसिट्स का आपने परफॉर्मा बनाया होगा, पेन स्लिप आपने सीखा उसका परफॉर्मा बनाया होगा। वैसे ही 5 मार्क्स का कंफर्म आपके बोर्ड के पेपर में बिल्स ऑफ एक्सचेंज का परफॉर्मा ड्रॉ करना है, मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज कैसे बनता है। आपने बिल्स वैसे देखे हैं, बहुत सारे डिफरेंट मिस्ताओं आपने कंपनीज के बिल्स देखे होंगे, बट वो बिल्स अलग होते हैं। यहाँ पर जो आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज का प्रोफोमा बनाना है वो इस तरह से बनाना है जैसे मैं आपको बताऊंगा। अभी नेक्स्ट मीन्स आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिखेगा जो 5 मार्क्स के लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज का प्रोफोमा का क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो दिखेगा। आपको वो क्वेश्चन मैं आपके लिए रीड करूंगा, आप बेटा वो क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुने और पॉसिबल है तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो जब भी मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखाऊंगा, सॉल्यूशन करेंगे तभी आपको इजी पड़ेगा। ओके, तो हम आपको अभी नेक्स्ट आपको स्लाइड पे अभी आपको परफॉर्मा जो आने वाला है क्वेश्चन उसका फर्स्ट प्रॉब्लम दिखेगा। सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में और परफॉर्मेंस के हम प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम फर्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। अगर आपने ध्यान दिया और समझ लिया बेटा, आज के दिन में ही आउट ऑफ 80 मार्क्स आपकी 5 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगी। अभी नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है बेटा, अभी आपके स्क्रीन पे प्रॉब्लम फॉर परफॉर्मा दिख रहा है। प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट, इसका बिल्स ऑफ एक्सचेंज का हमको परफॉर्मा बनाना है जो बेटा 5 मार्क्स के लिए रहेगा। इस तरह से क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में रहेगा। क्वेश्चन एक बार आपके लिए मैं रीड कर रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान दें, और पॉसिबल है तो इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट निकाल दो, प्लीज़ स्क्रीनशॉट निकाल दो। जैसे जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आपको थोड़ा ईजी पड़ेगा और समझेगा। लेट्स सी, आई एम रीडिंग द क्वेश्चन फॉर यू। फ्रॉम द फर्स्ट, प्रिपेयर अ बिल ऑफ एक्सचेंज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। वो इंफॉर्मेशन दी हुई है। फर्स्ट ड्रॉवर बताया है हितेश सिंह, रामनगर, मुंबई। ड्रॉवी संजय राय, मेन रोड, पुणे। ड्रॉवर ड्रॉवी। आफ्टर दैट अमाउंट ऑफ बिल दिया गया है कि 10,000 रुपीज़ का बिल है। क्रेडिट पीरियड बताया गया है 2 मंथ्स का है। जिस दिन ये बिल बना है उस दिन डेट ऑफ बिल दी हुई है 20 मई 2016 और एक्सेप्ट किया है हमारे ड्रॉवी ने इसको 25 मई 2016। ये इंफॉर्मेशन से हमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज का प्रोफोमा बनाना है। कैसे बनाना है, कैसे उसमें रूल्स फॉलो करने हैं, मैं सब आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, जो अभी हमने क्वेश्चन रीड किया बिल्स ऑफ एक्सचेंज का प्रोफोमा, ड्रॉवर ड्रॉवी के बारे में हमने सीखा कि कौन कौन मिस है। अभी उसका हम सॉल्यूशन जान रहे हैं, कैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज का प्रोफोमा बनाना है। लेट्स कॉन्सेंट्रेट, लेट्स फोकस ऑन बोर्ड। आपको बेटा 3 साइड से ऐसे स्केल और पेंसिल की मदद से लाइंस ड्रॉ करनी है। पेंसिल और स्केल का यूज़ करना है, पेन से नहीं बनाना है और ऐसे ही नहीं बनाना है, स्केल और पेंसिल का यूज़ करना है। 3 साइड से आपने लाइंस ड्रॉ कर दी। सेंटर पे आप लिखेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उसको फिर पेंसिल से अंडरलाइन कर देना है। बिल का बी कैपिटल रहेगा, ऑफ में ओ कैपिटल रहेगा, एक्सचेंज में ई कैपिटल रहेगा। सेंटर पे ये आ गया। राइट साइड में आएगा आपका ड्रॉवर का नाम और उसकी एड्रेस। ड्रॉवर का नाम क्या है चेक करते हैं। ड्रॉवर का नाम है हितेश सिंह। बेटा स्पेलिंग्स जैसे वहां पर एड्रेसेस की, सिटीज की जैसे दी हुई है आपको वैसे लिखनी है। लेट्स सी, हितेश सिंह दिया हुआ है, हितेश सिंह, कॉमा लगाएंगे। एड्रेस क्या है उसकी, रामनगर, मुंबई। रामनगर, कॉमा अगेन एंड देन मुंबई, सिटी के बाद फुल स्टॉप। ये बिल हितेश सिंह बना रहा है ड्रॉवर, तो ड्रॉवर का नाम और एड्रेस आ गया। ड्रॉवर ये बिल कभी बना रहा है वो भी आपके पास अवेलेबल होगा, दैट इज डेट ऑफ बिल। आप चेक करेंगे क्वेश्चन में दिया हुआ है डेट ऑफ बिल इज 20 मई 2016, तो आपको वो ये डेट यहाँ पर नोट करनी है, 20 मई 2016 फुल स्टॉप। यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको एक बॉक्स बनाना है विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड पेंसिल, और लिखना आपको पेन से है। और क्या बनाएंगे हम, क्या लिखेंगे हम, स्टेम।
आपको पता है हम रेवेन्यू स्टैंप लगाते हैं जब भी बिल का अमाउंट होता है, जब भी बिल बनता है तो एक रेवेन्यू स्टैंप। आपको रेवेन्यू स्टैंप नहीं लगानी है, आपको रेवेन्यू स्टैंप बनानी है। इस तरह से स्केल और पेंसिल से लिखना, पेन से। फिर एक छोटा सा और एक बॉक्स आएगा विद हेल्प ऑफ स्केल एंड पेंसिल अगेन। यहाँ पर आएगा अमाउंट ऑफ बिल, रुपीस। आपको पता है अभी हमारे पास रुपीस का साइन अवेलेबल है। रुपीस कितना अमाउंट है बिल का, आपने देखा 10,000, तो 10,000 हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर इसके बाद हितेश सिंह, रामनगर मुंबई, डेट उसने लिखा, स्टैंप आ गया, अमाउंट ऑफ बिल आएगा। यहाँ पर आएगी कुछ वर्डिंग जो आपको वर्डिंग समझनी है और याद कर लेनी है। वर्डिंग में आपको पहले देखना है कि कितने पीरियड का बिल है। पीरियड ऑफ बिल इज 2 months, तो आपका स्टार्ट होगा यहाँ से। एक लाइन आप छोड़ सकते हैं, फिर आप स्टार्ट करेंगे 2 months आफ्टर द डेट, कॉमा हितेश सिंह बोल रहा है, हितेश सिंह बिल बना रहा है, ड्रॉवर है हमारा। क्या बोल रहा है, 2 months आफ्टर द डेट, पे टू मी और माय ऑर्डर। हितेश सिंह बोल रहा है ड्रॉवर, 2 months आफ्टर द डेट, पे टू मी और माय ऑर्डर द सम ऑफ रुपीस। अमाउंट कितना था, 10,000। यहां पर आपने कैसे लिखा बेटा, यहां पर आपने लिखा 10,000, यहां पर भी आपको लिखना है। अभी यहां पर आपको लेकिन वर्ड्स में लिखना है, टू मी और माय ऑर्डर द सम ऑफ रुपीस 10,000 ओनली, 10,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव। हितेश सिंह जो ड्रॉवर है वो क्या बोल रहा है, 2 months आफ्टर द डेट। 2 months कहां से आया, पीरियड ऑफ बिल क्वेश्चन में दिया हुआ था। 2 months आफ्टर द डेट, पे टू मी, बोला है मुझे देना या मैंने जिसको बोला उसे देना। अभी इस प्रॉब्लम में आपको पे ही नहीं दिख रहा है, वो बोला मुझे देना या मैं किसको बोलूंगा उसे देना। फ्यूचर में हम ऐसा प्रॉब्लम भी करेंगे जिसमें दिखा रहेगा कि पे भी अवेलेबल है, लेकिन अभी इस प्रॉब्लम में पे अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, 2 months आफ्टर द डेट, पे टू मी और माय ऑर्डर द सम ऑफ रुपीस 10,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव। क्योंकि उसने क्या रिसीव किया होगा, जरूर ड्रॉवी ने गुड्स रिसीव किए होंगे, तो हम लिखेंगे क्या, फॉर द वैल्यू रिसीव। आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज का डेफिनेशन आपको अगर याद हो तो उसमें लिखा होता है साइंड बाय द मेकर। तो पहले हितेश सिंह क्या करेगा, बिल को साइन करेगा, एज दी सिग्नेचर। आपको साइन नहीं करना, आपको उसका सिर्फ नाम लिखना है, हितेश सिंह। अभी ये बिल बन गया, अभी ड्रॉवर का काम यहाँ पर फिनिश हो गया। अभी ये ड्रॉवर किसके ऊपर बिल बना रहा है, उसकी एड्रेस और उसका नाम यहाँ पर लिखने वाला है। किसके ऊपर बिल बना रहा है, टू। अब ड्रॉवी का अगर नाम देखेंगे, एड्रेस देखेंगे क्वेश्चन में तो लिखा हुआ है ड्रॉवी है मिस्टर संजय राय, मिस्टर संजय राय, कॉमा मेन रोड एंड सिटी का नाम है पुणे। ये बिल अभी हितेश सिंह ने बना दिया और नाम और एड्रेस ड्रॉवी का भी लिख दिया। बेटा यहां तक काम ड्रॉवर का था, ड्रॉवर ने ये बिल बनाया। अभी मेन काम होगा किसका, ड्रॉवी का, जो इस बिल को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। अभी तक ये कुछ भी नहीं है, अभी तक ये सिर्फ एक ड्राफ्ट है, लेकिन इसको वैल्यू तभी होगा जब भी इसको ड्रॉवी क्या करेगा, साइन करेगा। ड्रॉवी के पास बिल जाएगा, ड्रॉवी दो बातें जरूर चेक करता है, एक अमाउंट ऑफ बिल बरोबर है, दूसरा चेक करता है पीरियड ऑफ बिल, जितना क्रेडिट ग्रांट किया गया था सेलर के तरफ से वो बरोबर है। अगर वो इन दोनों बातों से सेटिस्फाइड होता है तो वो बिल को एक्सेप्ट करता है। अभी हम देखेंगे वो बिल एक्सेप्ट कैसे करते हैं। एक्सेप्ट करेगा ड्रॉवी, यहाँ पर एक दो लाइन आप नीचे जाके बिल को वो दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेगा, लिखेगा वर्ड एक्सेप्टेड, फिर अपनी सिग्नेचर करेगा, कौन, संजय राय, और आपको एक्सेप्टेंस की डेट भी दी गई है कि संजय राय हमारे ड्रॉवी ने बिल कभी एक्सेप्ट किया है, दैट इज 25 मई। आपको फिर वो डेट भी लिखनी है, 25 मई 2016। यहाँ पर ऑफिशियली बिल्स ऑफ एक्सचेंज का प्रोफोर्मा खत्म होता है। आपको सिर्फ इसको लास्ट में खाली क्या कर देना है, 3 साइड से आपने लाइंस ड्रॉ की थी, अभी 4th साइड में आपको क्या करना है, इसको क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। जैसे आपने इसको क्लोज कर दिया, आपकी 5 मार्क्स का बिल्स ऑफ एक्सचेंज का प्रोफोर्मा बन गया बेटा। अगर आप इतना अच्छी तरह से इसको फॉलो कर पाए तो आपकी 5 मार्क्स वहाँ पर कंफर्म हो जाएंगी आपके बोर्ड के पेपर। एक बार फिर से शॉर्ट में रिवाइज कर रहा हूँ, क्या क्या आपको देखना है, क्या क्या संभालना है।
सेंटर पे आपको लिखना है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सेंटर पे क्या लिखना है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। पेंसिल से उसको क्या करना है? अंडरलाइन करना है। राइट साइड में ड्रॉवर का नाम और एड्रेस आएगा विथ डेट ऑफ बिल। डेट लिख के डेट ऑफ बिल लिखेंगे, ठीक है बेटा। लेफ्ट साइड में स्टैंप आएगा। आपको ये पेंसिल और स्केल की मदद से बनाने हैं 2 बॉक्स, एक थोड़ा स्क्वायर शेप में रहेगा और एक थोड़ा रेक्टेंगल शेप में रहेगा। ये आएगा स्टैंप और यहाँ पर आएगा अमाउंट ऑफ बिल। एंड आफ्टर दैट आपको एक लाइन अगर आप छोड़ सकते हैं, बिकॉज एक पूरा पेज आप इसके लिए यूज कर सकते हैं, तो एक लाइन आप यहाँ पर वाले लीव कर दें, छोड़ दें, फिर आप स्टार्ट करें आपकी वर्डिंग। ये बेटा वर्डिंग आपको याद करनी है। पीरियड ऑफ बिल अलग अलग क्वेश्चंस में चेंज होगा, लेकिन आप देखें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या था? 2 मंथ्स था, तो हमने स्टार्ट कैसे किया? 2 मंथ्स आफ्टर द डेट। आप देखोगे उसके बाद कॉमा है। पे टू मी और माय ऑर्डर, क्योंकि इस क्वेश्चन में अभी तक पे के बारे में कुछ बताया नहीं था, तो हितेश सिंह जो ड्रॉवर है वो क्या बोला है? पे टू मी और माय ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज। जो हमने यहाँ पर फिगर्स लिखी थी वही अभी हम वर्डिंग्स में लिखेंगे, 10,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव। उसके बाद साइंड बाय द मेकर। बिल कौन बना रहा है? हितेश सिंह, तो पहले वो साइन करेगा। और किसके पास ये बिल भेजा जाएगा? उसका नेम और एड्रेस, दैट इज ड्रॉवी का नेम और एड्रेस यहाँ पर लेफ्ट साइड में आएगा। उसके बाद भले आपके पास जैसे स्पेस है तो एक या 2 लाइन और नीचे जाके भी आप क्या कर सकते हो? पैरेलल लाइंस ड्रॉ करके एक्सेप्टेड लिख सकते हो। ये और पैरेलल लाइंस जो ड्रॉ करनी है आप वो पेंसिल से बनाएंगे। उसके बाद फिर सिग्नेचर करेगा, साइन करेगा संजय राय। संजय राय ड्रॉवी एक्सेप्ट करेगा जब बिल, तभी वो 2 बातें चेक कर रहे हैं। अमाउंट ऑफ बिल ओके है, पीरियड ऑफ बिल जितना बोला गया था उतना ओके है, तो वो बिल को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। और कभी बिल एक्सेप्ट कर रहा है उसकी डेट भी लिखी हुई है। फिर आप 1-2 लाइन और नीचे जाके पहले आप उसको क्या कर सकते हैं? क्लोज कर सकते हैं। जैसे आप क्लोज करेंगे आपका 5 मार्क्स का परफॉर्मा हो जाएगा। इस तरह से ही आपको क्या करना है? फॉलो करना है। जो भी मिसताओं आपको बताई गई है, जहाँ पर कॉमास हैं, फुल स्टॉप्स हैं, वो आपको फॉलो करने हैं। स्केल का, पेंसिल का यूज करना है, तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट सेशन में हम और इसके बेसिस पे और प्रॉब्लम्स क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे और सारे परफॉर्मेंस आपके लिए मैं बनाऊंगा। कुछ आपको होमवर्क भी दिया जाएगा और हमारी 5 मार्क्स उसमें अश्योर हो जाएंगे, ठीक है बेटा। आज हमारा अपना पीके का सेशन, जो आज का सेशन है, यहाँ पर ही हम स्टॉप कर रहे हैं। नेक्स्ट सेशन में और इसके परफॉर्मेंस की हम प्रैक्टिस करेंगे। कुछ आपको होमवर्क भी दिया जाएगा, वो भी आप प्रैक्टिस करना। लेकिन आप ये प्रॉब्लम जैसे आपको भी एक्सप्लेन किया गया है, तो आप इसको बहुत ध्यान से रिवाइड करके अच्छी तरह से इसको आप समझ लेना, ठीक है बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट्स है वगैरह, तो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है बेटा। आज का सेशन हम यहाँ पर ही फिनिश कर रहे हैं। नेक्स्ट सेशन के लिए आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आस्था क्लासेस से चंदन सर आपको नेक्स्ट लेक्चर की इन्फॉर्मेशन दे देंगे, टाइमिंग्स की इन्फॉर्मेशन दे देंगे। जरूर अटेंड कीजिएगा और टाइम से पहले ही आप ऑनलाइन आ जाइए, ठीक है बेटा। ओके Friends, hope you enjoyed your lecture today. For further more lectures, online lectures, you have to fill your online registration form on www.asthaclasses.in, or you can call us on 9595123456. Stay tuned with Astha Classes. Thank you so much.